learning. Today we will discuss exercise 2.5 of fractions and decimals. So let's begin with question number 1, which is greater 0.5 or 0.05. So in this type of questions, we first convert them into equivalent fractions. So first of all, convert into equivalent fractions. So you can write 0.5 as 5 upon, write 5 as it is, and this upon, write 1, and after decimal count how many numbers are there. Only one number, so put 1 0. So this is equal to 5 upon 10. Similarly, you can write 0.05 as, write 5 as it is upon 1. See, after decimals how many numbers are there? 2 numbers are there, put 2 zeros. This is equal to 5 upon 100. अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं वो हमारे डिफरेंट हैं, तो इसको हमें सेम करना होगा, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं. तो here multiply by 10. This is equal to 50 upon 100. Now both denominators are same, so you can say that 50 is greater than 5, or you can say that 0.5 is greater than 0.05, and this is your answer. Next part, 0.7 or 0.5, convert into equivalent fractions. Convert into equivalent fractions. So you can write at 0.7 as 7 upon 10. Similarly, 0.5 is equal to 5 upon 10. And you can say that 7 is greater than 5. Therefore, 0.7 is greater than 0.5. And this is your answer. Next part, 7 or 0.7. Again, convert them into equivalent fractions. So you can write 0.7 as 7 upon 10. Okay. And 7 is, here you can write 7 is 7 upon 1. तो अब अगर हम देखें अगेन जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 है, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो दिस इज इक्वल टू 70 अपॉन 10. अब हम देख रहे हैं कि जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हो गए, सो यू कैन से दैट 70 is greater than 7, therefore 7 is greater than 0.7, and this is your answer. Next part is 1.37 or 1.49. Again, convert into equivalent fractions. So you can write as 1.37 is equal to, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 137 को as it is लिखते हैं upon 1. अब इसके बाद देखते हैं, डेसिमल के बाद देखते हैं हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, सो पुट 2 zeros. सिमिलरली 1.49 के लिए आप न्यूमरेटर में 149 as it is लिखते हैं, डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं, एंड देन we will see कि कितने numbers present है after decimal, 2 numbers, so put 2 zeros upon 100. So clearly we can see, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं दोनों सेम है, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है, so we can clearly say that 149 is greater than 137, or you can say that 1.49 is greater than 1.37, and this is your answer. Next part is 2.03 or 2.30. Convert them into equivalent fractions. So you can write 2.03 equal to, अब देखो 203 as it is आप क्या करते हैं, न्यूमरेटर में लिख देते हैं, and for denominator put 1. अब देखते हैं डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं आपके, 2 नंबर्स प्रेजेंट है, सो पुट 2 zeros. सिमिलरली फॉर 2.30 राइट 230 in numerator as it is, and for denominator check how many numbers are there after decimal, 2 numbers are there, so put 2 zeros. So now अब आपने देखा कि जो हमारे न्यूमरेटर्स हैं, सॉरी डिनोमिनेटर्स हैं, वो क्या है आपके 100 सेम है दोनों में, सो यू कैन डायरेक्टली कंपेयर एंड से दैट 230 is greater than 203. So it means
2.30 is greater than 2.03 and this is your answer. For next part, 0.8 or 0.88 convert into equivalent fractions. Now 0.8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8/1. After decimal, how many numbers are there? 1 number, so 10. This is equal to 8/10 and 0.88 is equal to 88/. डेसिमल के बाद कितने नंबर से? 2 नंबर, सो पुट 20. अब आपने क्या ऑब्जर्व किया? जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. So you can say that this is equal to 80/100. अब now you observe कि जो हमारे denominators है दोनों के केस में वो सेम हो गए हैं and we can clearly compare that 88 is greater than 80. So you can say that 0.88 is greater than 0.8 and this is your answer. Next topic is convert fraction into decimal with base 10, 100 और 1000. अब अगर सपोज करो आपको कोई फ्रैक्शन गिवन है जिसका बेस 10 है, 100 या 1000 है, तो हम कैसे उसको डेसिमल में ले जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से टेक अ नंबर 6/10. ठीक है, एक तो मेथड होता है कि हम डिवाइड करते हैं. अब देखो हमने ये देखा कि जो 6 है वो क्या है? स्मॉलर देन 10 है, तो हम क्या करते हैं? पुट डेसिमल. ये डेसिमल लगाने से यू कैन पुट 0 हियर एंड अब आप कह सकते हो कि 10 6 60. So this is equal to 0.6. ठीक है, और एक डायरेक्ट मेथड होता है 6/10 को आपको लिखना है. राइट द न्यूमरेटर एज इट इज. अब डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करते हैं? काउंट करते हैं नंबर ऑफ जीरोस. हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 1 0. में जीरोस काउंट करने के बाद जो नंबर हमने यहाँ पे 6 आया है इसके हम लेफ्ट में नंबर्स काउंट करते हैं, तो 1 and put decimal here. For example, let's say we have a number 99/10. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट 99 as it is and अब हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं आपके पास. यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 1. तो हम यहाँ पे लेफ्ट से काउंट करेंगे नंबर्स, तो 1 काउंट करने के बाद हम डेसिमल पुट कर देंगे. सो दिस इज इक्वल टू 99/10 इज इक्वल टू 9.9. सेकेंड पार्ट, लेट्स से वी हैव 100 इन द बेस. सो हम लोग कैसे करते हैं डिवाइड? सपोज ये 61/100 है, तो हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो ये नंबर है 61 उसे एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं 61. अब हम लोग क्या करेंगे? काउंट करेंगे नंबर ऑफ जीरोस. वो आपके पास कितने आए? 2 आए. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे लेफ्ट से काउंट करते हैं 1 2 एंड पुट डेसिमल. ऐसे हमने काउंट किया, तो दिस इज इक्वल टू 61/100 इज इक्वल टू 0.61. लेट्स से वी हैव एनी नंबर 979 डिवाइड बाय 100. तो हम लोग इसको क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नंबर एज इट इज 979. अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? काउंट नंबर ऑफ जीरोस. काउंट नंबर ऑफ जीरोस. कितने जीरोस हो गए आपके पास? 2. अब हम यहाँ से लेफ्ट से काउंटिंग करते हैं और 2 नंबर्स के बाद क्या करेंगे? डेसिमल पुट कर देंगे, तो 1 2 पुट डेसिमल हियर. सो दिस इज इक्वल टू 979/100 इज इक्वल टू 9.79. नाउ थर्ड पार्ट, लेट्स से वी हैव 1000 इन बेस. सो लेट्स टेक अ नंबर 61/1000. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट 61 एज इट इज. अब हम लोग क्या करेंगे? काउंट करेंगे नंबर ऑफ जीरोस. काउंट नंबर ऑफ जीरोस. ठीक है, तो कितने हैं ये? 1 2 3. अब हम यहाँ से लेफ्ट से काउंट करना शुरू करते हैं 1 2. तो अब यहाँ पे 2 नंबर है तो एक हम 0 पुट कर देंगे, देन वी पुट दिस डेसिमल हियर. सो दिस इज इक्वल टू 0.061. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अ नंबर 619/1000. तो राइट 619 एज इट इज. नाउ काउंट नंबर ऑफ जीरोस. नंबर ऑफ जीरोस आपके पास कितने हैं? इक्वल टू 3. अब हम लेफ्ट से नंबर काउंट करते हैं 1 2 3 पुट डेसिमल हियर. सो दिस इज इक्वल टू 0.619.
सिमिलर पैटर्न से ही बेस में चाहे कितने 1 के आगे कितने भी जीरोस प्रेजेंट हो, आप किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट उसका जो बेस होगा वो 10 का मल्टीपल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स, आपको कन्वर्ट करना है रुपीज में, ठीक है। अब इसमें आपको एक बात पता है कि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे होते हैं एंड 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपी। इस कॉन्सेप्ट को हमें यूज करते हुए इसे सॉल्व करना है। सो 7 पैसे गिवन है, अब आपको इसे रुपी में लेके जाना है। सो यू नो दैट 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपी। सो 7 पैसे इज इक्वल टू 7/100 रुपी। नाउ अब इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? राइट 7 एज इट इज। हाउ मेनी जीरोस, कितने जीरोस प्रेजेंट है यहाँ पे? 2 जीरोस है। सो काउंट द नंबर्स फ्रॉम लेफ्ट। 1 ही नंबर है तो हम क्या करते हैं, एक जीरो पुट करते हैं, देन पुट डेसिमल। सो दिस इज इक्वल टू 0.07 रुपी एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट इज 7 रुपी 7 पैसे। तो अब हम लोग क्या है, हमें किस चीज में लेके जाना है? रुपी में लेके जाना है। तो इट मीन्स सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस 7 पैसे को हमें कन्वर्ट करना होगा रुपी में, देन वी विल ऐड, जो ये कन्वर्ट होके आएगा उसको हम 7 रुपी में ऐड कर देंगे। सो we know that 1 पैसे is equal to 1/100 रुपी, तो 7 पैसे is equal to 7/100 रुपी एंड दिस इज इक्वल टू 0.07 रुपी। अब हम क्या करते हैं, 7 रुपी में ऐड कर देते हैं 0.07 रुपी। दिस इज इक्वल टू 7.07 रुपी एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट इज 77 रुपी 77 पैसे। तो 77 पैसे फर्स्ट टारगेट हमारा, इसको क्या है, कन्वर्ट करना रुपी में। सो वी नो दैट 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपी। सो 77 पैसे इज इक्वल टू 77/100 रुपी। अगेन राइट 77 एज इट इज। नंबर ऑफ जीरोस देखा आपने कितने, 2 प्रेजेंट है, तो लेफ्ट से 1 2 काउंट करो, डेसिमल साइन पुट कर दो। सो दिस इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, 0.77 रुपी। नाउ एट 77 रुपी प्लस 0.77 रुपी, दैट इज इक्वल टू 77.77 रुपी एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट इज 50 पैसे। तो यू नो दैट 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपी। So 50 paise is equal to 50/100 rupee. Now count number of zeros 2. So you can write it 0.50 rupee and this is your answer. Next part is 235 paise. You know that 1 paise is equal to 1/100 rupee. So 235 paise is equal to 235/100. अब काउंट नंबर ऑफ जीरोस, कितने जीरोस यहाँ पे प्रेजेंट है, 2 जीरोस प्रेजेंट है। सो यू कैन राइट 235 एज इट इज। और हम क्या करते हैं, लेफ्ट से काउंट करते हैं 1 2। सो यहाँ पे आपका डेसिमल आएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2.35 रुपी एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट इज कन्वर्जन टेबल। इस टेबल में मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे किलोमीटर से सेंटीमीटर या सेंटीमीटर से मिलीमीटर हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ लर्निंग ऑल दैट कि किसमें कितने 1000 है, 100 है, क्या चीज प्रेजेंट है, उससे बेटर है आप इस टेबल की हेल्प से आप इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन इट। हम इसमें लिखते हैं KM, HM, DAM, M, DM, CM, MM। सिमिलरली आप ये ग्राम्स के लिए भी यूज कर सकते हो, KG, HG, DAG, G, DG, CG एंड MG। सिमिलरली ये आपकी क्वांटिटी लीटर के लिए भी यूज हो सकता है, KL, HL, DAL, L, DL, CL एंड ML। ठीक है। अब इसमें ये होता है, अगर आप मूव कर रहे हो, ये हमारी साइड क्या होती है, लेफ्ट, और ये हमारी साइड होती है राइट। इफ यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। एंड इफ यू आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो। इन केस अगर आपको किलोमीटर से मीटर में जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा। इन केस आपको मिलीमीटर से मीटर में आना है तो आपको डिवाइड करना होगा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी अप्लाई सेम चीज होगी।
left right. If you are moving from left to right, you have to multiply, and if you are moving from right to left, you have to divide. Same case applied here. If you are moving from left to right, you have to multiply the quantities, and if you are moving from right to left, you have to divide the numbers. ठीक है, अब इसका हम यूज कैसे करेंगे? दिस आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस ओनली. क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर. सो अभी हमने एक टेबल लर्न करी है, हम उसको लिख लेते हैं. KM, HM, DAM, M, DM, CM एंड MM. ठीक है, और ये आपको पता है कि अगर आपको इस साइड मूव करना होगा, इट मीन्स लेफ्ट टू राइट जाना होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और राइट टू लेफ्ट जाना होगा तो हम डिवाइड करेंगे. अब आपको क्या करना है? आपको कन्वर्ट करना है 5 सेंटीमीटर को किस में लेके जाना है? आपको मीटर में लेके जाना है. ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, सेंटीमीटर यहाँ पे है, यहाँ पे पुट 1. अब आपको मीटर तक जाना है, सो जितने उसके बीच में आ रही हैं क्वांटिटीज वहां पे पुट जीरोस, और इधर जाना है तो डिवाइड. तो इट मीन्स यू कैन से दैट 1 centimeter is equal to 1 upon 100 meter. So 5 centimeter is equal to 5 upon 100 meter. So this is equal to, write 5 as it is. Count number of zeros. कितने zeros present है? 2 zeros present है. यहाँ पे अगर हम left move करते हैं तो 1 number present है, तो एक put 0 by yourself and put decimal sign. So this is equal to 0.05 meter and this is your answer. नेक्स्ट केस में आपको क्या करना है? 5 सेंटीमीटर को आपको किलोमीटर में लेके जाना है. सो राइट KM, HM, DAM, M, DM, CM एंड MM. अब कहाँ से कहाँ को जाना है हमें मीटर सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाना है. तो सेंटीमीटर पे आप 1 रखिए और किलोमीटर तक सारी वैल्यूज पे 0 पुट कर दीजिए. एंड इधर मूवमेंट हो रहा है तो इट मीन्स आपको क्या करना है? डिवाइड करना है. सो यू कैन से दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 2 3 5 zeros, 1 2 3 4 5 zeros. So 5 centimeter is equal to 5 upon 1 2 3 4 5 zeros. ठीक है, अब ये क्या होगा? काउंट नंबर ऑफ जीरोस. कितने जीरोस हैं? 5 है. तो अब हम 5 को पहले एज इट इज लिखते हैं. अब 0 के लेफ्ट में हम काउंट करना शुरू करते हैं. तो 1 नंबर है तो पुट हाउ मेनी जीरोस? 4 zeros, 1 2 3 4 एंड देन पुट डेसिमल. तो इतने इसमें क्या होंगे? आपके किलोमीटर होंगे. एंड दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट पार्ट इज एक्सप्रेस 35 mm इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर. तो हम सिमिलरली लिखते हैं वही अपनी टेबल. KM, HM, DAM, M, DM, CM एंड MM. ठीक है, अब हमें क्या करना है? 35 mm को लेके जाना है. किस में लेके जाना है? सेंटीमीटर में लेके जाना है. ठीक है, तो mm से सेंटीमीटर में जाना है. पुट 1 हियर एंड 0. तो और इस साइड मूव हो रहा है तो आपका क्या होगा? डिवाइड होगा. इट मीन्स 1 mm is equal to 1 upon 10 cm. So 35 mm is equal to 35 upon 10. This is equal to, write 35 as it is. Count number of zeros. कितने जीरो है? 1 है, तो लेफ्ट में काउंट करके 1 नंबर पुट डेसिमल. सो दिस इज इक्वल टू आपका कितना हो गया? 3.5 cm. नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है? 35 mm को मीटर में लेके जाना है. अगेन राइट KM, HM, DAM, M, DM, CM एंड MM. ठीक है, अब आपको mm को किस में? मीटर में लेके जाना है. पुट 1 हेयर और मीटर तक सब में क्या करो? आप 0 पुट कर दो. अगेन दिस साइड मूवमेंट तो डिवाइड होगा. इट मीन्स 1 mm इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 m. So 35 mm is equal to 35 upon 1000 meter. Write 35 as it is. Count number of zeros, 3 zeros. और यहाँ पे लेफ्ट में हमारे पास कितने नंबर है? 2 नंबर से. पुट 1 0 एंड देन पुट डेसिमल साइन. सो दिस इज इक्वल टू 0.035 मीटर. नेक्स्ट पार्ट इज 35 mm को आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में. अगेन राइट द टेबल. KM, HM, DAM, M, DM, CM एंड MM. ठीक है, अब आपको क्या करना है? मिलीमीटर से किलोमीटर तक जाना है. पुट 1 हियर, पुट zeros.
एंड दिस साइड मूवमेंट तो डिवाइड होगा. इट मीन्स 1 mm इज इक्वल टू 1 अपॉन हाउ मेनी जीरोस, 1 2 3 4 5 6 जीरोस. इतने इसमें क्या होंगे, km होंगे. तो 35 mm में कितने होंगे, 35 अपॉन 1 के आगे 6 जीरोस. ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू राइट 35 एज इट इज. काउंट नंबर ऑफ जीरोस, कितने 6 जीरोस हैं और ऊपर कितने, जब हम लेफ्ट से नंबर काउंट कर रहे हैं तो 2 ही नंबर हैं, तो 3 4 5 6. अब 6 हो गए. नाउ पुट डेसिमल हेयर. सो दिस इज इक्वल टू 0.0000035 km.